हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डेली 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डेली 10 एमसीक्यू और 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन समझेंगे। टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द यूपीएससी CSE GS syllabus. By joining this channel, you can complete your whole UPSC syllabus in the form of MCQ and descriptive question within 11 months. You can join this course at any time and it will be completed within 11 months. You first learn this subject theoretically and then watch this video so it will be benefited to you. So friends, let's start today's discussion. The topic of this question is today's discussion is earthquake and volcanism. So what is the first question? With reference to the volcanism, which of the following is are true? Molten rock material released from volcanoes are from the asthenosphere. This statement is correct. The rock material reaching the crust and the surface are called the magma. This is wrong. It is not called magma. It is called lava. Lava. Density of the crust is higher than that of the mantle. This is also not true. The density of the crust is lower than that of the mantle. Mantle means density density of crust is lower as compared to the mantle. So only options A is correct. So this is right. You can read this explanation. I will provide this PPT in PDF format. Next, which of the following material is are released from the volcanoes? Volcanic bombs, nitrogen components, hydrogen. So friends, all the components released from the volcanoes. Volcano से ये जो सारे हैं volcanic bombs, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और भी चीजें जैसे सल्फर और माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन ये सब इनके अंदर से निकलता है. So option D is correct. Next question, with reference to the sealed volcano, which of the following is true? They are the largest of all volcanoes. This is the correct. They are characterized by the low explosiveness कम मतलब वो एक्सप्लोजिव कम होते हैं. हवाई माउंटेन आर द एग्जाम्पल ऑफ सील्ड माउंटेन. हवाई माउंटेन जो है सील्ड माउंटेन का उदाहरण है. ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है इसके. तो एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. सील्ड volcano are the largest of all volcanoes. Hawaii volcano are the most famous example. These volcanoes are mostly made of the basalt. ये basalt से बने होते. They are not steep. ये steep भी नहीं होते. They become explosive if water gets into the vent. जब इसके वेंट में जल चला जाता है तो ये एक्सप्लोसिव बन जाते हैं, नहीं तो ये कम ही एक्सप्लोसिव होते हैं. सो ऑल द स्टेटमेंट is correct. The answer. At what type of plate boundary do सेलो फोकस अर्थक्वेक जो छोटा आकार का सेलो फोकस अर्थक्वेक होता है वो कौन से प्लेट बाउंड्री पे आता है? तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म. तो दोस्तों ये तीनों तरीके प्लेट बाउंड्री के उस पे आ सकता है. ठीक है, तीनों तरह के आ सकता है. तो ऑप्शन इसका डी होगा. ठीक है, जो सेलो फोकस एट्रीब्यूट किसी पे भी आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द पॉइंट ऑन द फॉल्ट वेयर सीस्मिक वेव आर रिलीज. जहां से सीस्मिक वेव रिलीज होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो उस पॉइंट को हाइपोसेंटर कहते हैं. ठीक, द हाइपोसेंटर इज द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक रप्चर्स स्टार्ट. ठीक है, ये हाइपोसेंटर ये है ना. द एपिसेंटर एपिसेंटर भी एक पॉइंट होता है. ये एपिसेंटर पॉइंट होता है पॉइंट डायरेक्टली अबोव इट एट द सरफेस ऑन द अर्थ. ठीक है, ये एपिसेंटर कहलाता है. ये पृथ्वी पर सबसे सीधा सबसे ऊपर वाला बिंदु होता है जहाँ पे ये सेस्मिक वेव वो की जाती है, मतलब इनको अनुभव किया जाता है. What percentage of India's territory comes under the moderate and high seismic zone? भारत का राज्य क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है मॉडरेट और हाई सेस्मिक जोन्स के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अराउंड 60%.
According to the frequency and intensity of the earthquake, India has been divided into 4 zones: Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5. ठीक है, about 60% of Indian territory come into the moderate and high seismic zones. So 60% इसका आंसर. Next, which among the following pairs are correctly matched? तो प्राइमरी वेव ट्रांसफर ये नहीं कहलाती है, ये लॉन्गिट्यूड वेव कहलाती है. सेकेंडरी वेव्स ट्रांसफर वेव होती है और एल वेव्स लो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है. सो केवल एक पेयर, ये वाला पेयर ही इसका मैच कर रहा है. तो ओनली वन पेयर इज करेक्ट. वन पेयर इज करेक्ट. ये इसका आंसर हो जाएगा. ये एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको समझ सकते हैं. नेक्स्ट, which of the following pairs regarding the intrusive volcanoes landform are correctly matched? इसमें intrusive volcanoes कौन सा सही है? Sill lava solidifies almost the perpendicular to the ground. फेकोलिथ क्या होता है? Found at the base of the syncline on the top of the antisyncline. लेकोलिथ क्या होता है? When lava settles into a saucer shape while moving on a horizontal plane. ये हॉरिजेंटल प्लेन. तो इसमें केवल एक पेयर सही है. तो कौन सा पेयर है मैं आपको बताता हूँ. पहले तीनों चीजें आप समझ लीजिए. जैसे लेकोलिथ क्या होते हैं, इसमें लेकोलिथ दिया, आर द लार्ज डोम शेप्ड. लेकोलिथ आर द लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विथ ए लेवल बेस एंड कनेक्टेड ए पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम द ब्लो. ठीक है, इसमें कहाँ है लेकोलिथ? इसमें नहीं है शायद. ठीक है, तो लेकोलिथ क्या होता है? लोपोलिथ क्या होता है? आर फॉर्म्ड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड एंड portion of the may tend to the move in a horizontal direction where it finds a weak plane and develop into a saucer shape conveyor to the sky body. ये लोपोलिथ कहलाता है. ठीक है, ये क्या कहलाता है? लोपोलिथ कहलाता है. ठीक है, इसमें क्या दिया था? लोपोलिथ भी नहीं था. इसमें क्या था? लोकोलिथ था. ठीक है, लोकोलिथ क्या है? व्हेन ए लावा सेटल इन ए सोसर शेप. लोकोलिथ में क्या बोल रहा था? तो ये नहीं होगा लोकोलिथ का, ये नहीं होगा. ठीक है, अब क्या आएगा? फेकोलिथ क्या होता है? आर वेनी मास ऑफ इंट्रिंसिक रोज फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइंस और एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइन इन ए फोल्डेड इग्निशियस कंट्री. हेंस ओनली दिस पेयर इज करेक्टली मेड. जो फेकोलिथ दिया है, इसमें फेकोलिथ दिया है फाउंड एट द बेस ऑफ द syncline and the top of anticline. At the top of anticline found in the, so this only इसमें ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, फेकोलिथ. ठीक है, और इसमें आप सील और सीट भी देख सकते हैं. द नियर होरिजन बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्निशियो ग्रोज आर कॉल्ड द सील और सीट डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल. ये सील और सीट, ये सील और सीट, ये देखिए, ये सील है. और डाइक्स भी देख सकते हैं. आर फॉर्म्ड व्हेन द लावा मेक्स इट्स वे थ्रोन क्रैक्स एंड सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट द परपेंडिकुलर ऑफ द ग्राउंड. तो ये क्या कहलाते हैं? डाइक कहलाता है. ये डाइक. ठीक, सो ओनली स्टेटमेंट, दिस वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए. नेक्स्ट, which type of volcanic eruptions is responsible for Deccan Trap formation in the Indian peninsular region? So इसमें क्या आएगा? Flood type of volcanic eruption. Flood basalt volcanic contain the high flood lava that flows the long distance. There can be a series of the flow with some flow attaining thickness of more than 50 meter. So इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्लड टाइप volcano eruption. Next question, what is the upper cup or saucer shaped depression of the volcano called? उसे क्या बोलते हैं? क्रेटर, वेंट, सिंडर या डोम. तो उसे हम बोलते हैं क्रेटर. जो सोसर शेप भी होता है ना, ये क्रेटर, ये पूरा क्रेटर कहलाता है. यहाँ से यहाँ तक. The upper cup or saucer shaped depression of the vent is called the crater. The narrow opening of the volcano is called the vent. ये छोटा सा जो ये नेरो ओपनिंग ऑफ द है ना, ये वेंट कहलाता है. ठीक है, अब एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अपन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अर्थक्वेक एंड व्हाट आर इट्स टाइप? आल्सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक अलोंग विथ चैलेंज फेस्ड इन प्री डिजास्टर प्रिपेयरनेस फॉर इट.
इसमें सबसे पहले होता है ना भूकंप क्या है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके जो अर्थक्वेक के उसके चैलेंजेस, और पहले उसको कैसे अपन प्रिपेयर कर सकते हैं, डिजास्टर के पहले इसको कैसे रोका जा सकता है, मतलब क्या क्या इसकी प्रिपरेशन होती है, अगर ये इससे मतलब कम कैसे किया, इसके प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है। Earthquake is the perceptible shaking of the surface of the earth resulting from the sudden release of the energy in the earth crust that create the seismic waves. अर्थक्वेक क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक हिस्सों में जो आकस्मिक रूप से हलचल होती है उसे अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। It can cause series of destruction to property, injures of people, even kills. It happens when there is sudden movement of breaking of the tectonic plates. Tectonic plates के एकदम ब्रेक या मूवमेंट से भूकंप उत्पन्न होता है। अर्थक्वेक आर काज्ड बाय द वेरिएट फैक्टर्स सच एज द टेक्टोनिक प्लेट से होता है, वोल्केनिक इरप्शन से हो सकता है, या अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन से ये हो सकता है। प्लेट टेक्टोनिक से हो सकता है, प्लेटों के मूवमेंट से हो सकता है, ठीक है। 3 तरह की प्लेट मूवमेंट होता है, अभी अपन ने देखा था। ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्ले होती है, ठीक है। और दो और देखा, ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, अपोजिट होती है, ठीक है, और एक दोनों एक ही डायरेक्शन में भी होती है, ठीक है। 3 तरह की प्लेट मूवमेंट होती है। वोल्केनिक एक्टिविटी से भी हो सकता है, वोल्केन जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तब भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक मानव द्वारा भी किए जा सकते हैं, जैसे कृत्रिम जलाशय का निर्माण कर रहा है मानव, या कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है जिससे पृथ्वी की आंतरिक मतलब एक तरह से आंतरिक सतह को प्रभावित करने वाला कोई काम कर रहा है, जैसे माइनिंग कर रहा है, या वो कुछ ऐसा काम अंडरग्राउंड टनल बना रहा है, रोड या सबवे बना रहा है, तो भूकंप उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अर्थ यही भूकंप उत्पन्न होने के ये वेरियस रीजन है, ठीक है। अर्थक्वेक आर लेस एडवांटेजेस मोर हार्मफुल टू मैन, डैमेज डन इज चीपली फॉलो द रिपोर्ट्स, है ना। ये मानव के लिए लगभग फायदेमंद नहीं होते हैं, लेकिन हार्मफुल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, लॉसेस ऑफ लाइफ एंड पीपल, बहुत सारे व्यक्तियों की संपत्ति और व्यक्तियों को मारे जाते हैं इसमें। जैसे कच्छ का भूकंप देख लीजिए आप, कच्छ का 2000 में भूकंप आया था 26 जनवरी को, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर्स, इसकी वजह से भूकंप के जब पृथ्वी की आंतरिक सतह में हलचल होती है तो रिवर्स का जो उसका प्रभाव है वो भी बदल सकता है। ऑन द अकाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक समटाइम्स रिवर्स आर आल्सो चेंज देयर कोर्सेस कंसिक्वेंटली व्हेन फ्लड्स कम प्ले हैवॉक विद पीपल्स लाइफ। सुनामी भी हो सकती है, इस काज ग्रेट डैमेज ऑफ लाइफ and property of people living in the coastal areas as well as the tourists. Tsunami caused by the earthquake in the area near Sumatra 26 जनवरी 2004 को जो भूकंप आया था सुनामी से, उसकी वजह से बहुत सारे लोग का वो हो गया था, लॉस हो गया था। क्रेक इन द अर्थ क्रस्ट आ जा सकता है। प्री डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भी अपन कर सकते हैं, जैसे पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी अपन बना सकते हैं। नेशनल एंड सब नेशनल डिजास्टर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड हैजार्ड मैपिंग कर सकते हैं। गैप्स इन द कैपेसिटी बिल्डिंग एट ऑल लेवल कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अपन इसको भूकंप को रोकने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें अपनी काफ़ी भूकंप की चेतावनी वाले केंद्रों की स्थापना कर चुका है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।